Okay, friends, in our previous video on overcoming nervousness, we saw what is nervousness, how does it affect us, what are the disadvantages of being nervous, और जो nerves हैं मतलब ये हमको क्या नुकसान पहुंचाती हैं. And also we found that this is something not to be scared of. It has got certain advantages for us also. There is a purpose for it and we saw its advantages. We also saw that by gaining experiences, as we gain more and more experience, it will help us in getting over the problem of nervousness. Now we will continue and we'll see how to control the nervousness before the event which causes us nervousness and during the event which causes us nervousness. Okay, so let us see what we must do before an event which causes us nervousness or which we think will cause us nervousness. And we must prepare ourselves mentally as well as physically before that event. Get enough sleep and rest. This will give you energy to go through that event. You see, if you didn't get enough sleep, you are not refreshed, then what happens? Not refreshed, you lack energy. So this will, getting enough sleep will help you in doing that. Next thing is you must do regular exercise. Apart from keeping you healthy, physically healthy, it also strengthens you mentally and helps you in staying focused on whatever you want to do. You must ask yourself solution focused questions. These will help you. You see, whether you realize or you don't realize, how do we think? All our thinking happens in questions and answers. मैं ये कर लूं, मैं ये ना करूं, ये ऑब्स्टिकल से मैं जंप कर दूं, कुछ होगा तो नहीं. So you see, these are questions we are continuously asking ourselves. And our mind, it is better than any computer, is better than Google. Google, if you ask a wrong query, it will tell you no results found. If the query is okay, it will give you a lot of results. But in case of mind is something which has very strong ego. It cannot accept कि मेरे को answer नहीं पता. So what it will do? It will make answers and give it to you. And take it from me, they will not be very helpful for you. They will not generate any confidence in you. You ask your mind. जब आप माइंड भी जब हम आपस में सोचते हैं यार मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, so this is a question you are asking yourself. मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? Is there any answer to that? So mind cannot say कि I don't know. It will say क्योंकि तुम गधे हो. Your own mind is telling you only. तुम्हारी किस्मत खराब है. तो ये चीजें क्यों हम सुने? अच्छा, another thing with mind is like it's an attention seeking machine. It's like a small child. छोटे बच्चे को अगर attention मिल रही है तो बड़ा वो पालने में बड़ा खेल रहा है, मजे कर रहा है. जैसे ही मम्मी ने सोचा कि चलो भी जाके फटाफट मैं कुछ बना लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ, and she goes from there, he says nobody is there, no attention, and he starts screaming, रोने लग जाता है, and the result is मम्मी भाग के आती है और उसको पता लग गया कि भाई अटेंशन चाहिए तो थोड़ा सा तंग करने वाले काम करो. ऐसे ही आपको माइंड को भी पता है, वो बचपन से यही सीखा ना उसने, तो उसको भी पता है अटेंशन चाहिए तो डरा दो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. सो डोंट लेट दैट थिंग हैपन. उसको कंट्रोल करने का तरीका यही कि आप सही क्वेश्चन पूछो. इंस्टेड ऑफ आस्किंग मेरे साथ ऐसे क्यों होता है या मैं ये क्यों नहीं कर पाता हूं, you ask how can I do it. Analyze the situation. Whatever is the situation, analyze it. क्या एनालिसिस करोगे? By asking those W से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन. What is the problem? Where is it? When? Why? Who? तो ये जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो it will help you in analyzing the situation, analyzing the question. आप एग्जाम में करते हो ऐसे. जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उसमें उसको पढ़ते हो
आप देखते हो कि अच्छा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एंड दिस आई नीड टू फाइंड आउट। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को साइड पे रख देते हो। यू डोंट कीप इट यहाँ पर नहीं रखते हो उसको, आप साइड पे रख देते हो उसको, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, क्वेश्चन, वट एवर इट इज। आप ये देखो, अगर आप हाथ में यहाँ ऐसे रख लेता हूँ, will I be able to see something? I can't even see my hands properly. But if I keep them here, I can see my hands properly. कहीं निशान लगा हुआ है, हाथ की लाइनें, सब कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है। So प्रॉब्लम को भी अगर हम उठा के यहाँ रख लेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। सॉल्यूशन कैसे दिखाई पड़ेगा? फिर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। सो मूव द थिंग है, प्रॉब्लम को समझो और उसके बाद छोड़ दो, एंड देन लुक अराउंड, यू विल गेट द सॉल्यूशंस, वेदर इट इज योर ग्रुप टास्क। ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, क्यों है, मारे जाओगे। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो कुछ पर्पज है। हाउ कैन दिस स्ट्रक्चर शेप हेल्प मी, यू गेट द आंसर्स। जब पिक्चर को आप देखते हो तो पिक्चर के बारे में भी व्हेन यू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस you will get the answer. So ask solution focused questions rather than problem creating questions. मैंने बता दिया प्रॉब्लम क्रिएटिंग वाले कौन से होते हैं, और solution based है when you ask how, and the mind itself will give you so many options, so many answers it will give you. Then select the best one, use your intellect and then get the best solution. It will help you in calming your nerves. आपके माइंड को वो काम रखेगा, और जब when the mind is calm and cool, you'll be able to find the solutions. It will help you in focusing on the desired results. You may also ask people whom you feel they are more confident, they don't get nervous. You ask them, भाई आप क्या करते हो उसके बारे में। हर चीज जरूरी नहीं कि हम गलती करें फिर सीखेंगे, तो वी कैन लर्न फ्रॉम द अदर्स ऑल्सो। ट्राई दैट आउट, इफ इट वर्क्स फॉर यू गुड इनफ, नॉट नेसेसरी कि जो उसके लिए काम करेगी आपके लिए भी काम करेगी, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। So now we will have a look at the other things which will help you. That is, जब वो नर्वस वाला इवेंट होता है फिर क्या करें, उस इवेंट के दौरान क्या करना है, विल हैव ए लुक। साइक योरसेल्फ अप। आपने देखा है कई बार मैच हो रहा होता है, खासकर मैं टेनिस में देखा है, मैंने बैडमिंटन में भी देखा है, अगर एक आधा बार शॉट नहीं लगा तो वो फिर ना यूं यूं करते हैं, जो मन ही मन में खुद से बातचीत करते हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को साइक अप कर रहे होते हैं। जब बंदा एथलीट जो है वो जब बैठा होता है ना अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, उस टाइम पे उसका सारा ध्यान है कहाँ पे, फोकस्ड ओनली ऑन दैट साउंड विच इज गोइंग टू कम, एंड इज थिंकिंग कि कैसे मैंने आगे भागना है, ये नहीं कि अगर मैं पीछे रह गया तो, और वो विजुअलाइज कर रहा है कि मैं जैसे वो हुआ उसके साथ ही निकलूंगा। तो इस चीज के ऊपर आपने, और विजुअलाइज करना किस तरफ को है, अच्छा विजुअलाइज आप करोगे कैसे, अपने आपको आपने साइकअप करना है ना, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, व्हाट, यूज योर इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन की शक्ति भगवान ने हम लोगों को दी है। हम लोग मैंने से ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में ये नहीं है कुछ एनिमल्स में है बट इट्स वेरी लिमिटेड, बट ह्यूमन बींग्स को खुल के डाल दिया, बड़ा सारा एक बना रखा है राइट साइड ऑफ योर ब्रेन विच इज देयर टू, आपके अंदर क्रिएटिविटी लाता है आपके अंदर में, उसको आपने ताला लगा के रखा हुआ है तो, पर है आपके पास, उसको टैप करना शुरू करो, नल खोल दो उसका, नल बंद होगा तो टंकी में से पानी नहीं निकलेगा, तो नल को खोलो। एंड ये जो इमेजिनेशन है ये दुधारी तलवार है, इट इज ए डबल एजेड वेपन। हाउ यू यूज इट, इट कैन बिकम अ कर्स, एक शाप बन जाता है आपके लिए, इट कैन ऑल्सो बिकम अ बून फॉर यू, एक वरदान की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हो। भगवान ने दिया है वरदान के तौर पे, और हम उसको बना लेते हैं एक शाप। पहली बात तो हम उसको यूज ही नहीं करते हैं, तो उसको यूज करो। हम जब हम देखते हैं ना कि यार कल ये होगा, प्रेजेंटेशन देनी है, और यार अगर मेरे से ठीक ना हुई, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया मुझे जवाब ना आता हुआ, अगर उस टाइम पे ये हो गया, क्यों सोच रहे हो उस चीज के बारे में, अगर ये सोचो, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सब्जेक्ट मेरा है, मैं इस पे तैयारी करके बैठा हूँ, मैंने तैयारी की है इसके ऊपर, क्या पूछ लेंगे, उन्होंने तो तैयारी नहीं की होगी ना, मैंने तैयारी की हुई है, उससे पूछेंगे तो मेरे पास आंसर होंगे, सारी चीज के आंसर होंगे, आई गिव एन आंसर। अगर नहीं भी हुआ आंसर, आई विल से सॉरी आई डोंट नो, एक आधी बारी ऐसा होगा ना, बार बार तो नहीं होगा। तो जब आप विजुअलाइज करते हो तो विजुअलाइज पॉजिटिव आउटकम। मैं लेक्चरर, मैं एसएसबी जा रहा हूँ, आई विल गेट सिलेक्टेड, आई विल गेट रिकमेंडेड, अभी आपका नंबर आने वाला है, लेक्चरर के लिए आप बैठे हो, विजुअलाइज पॉजिटिव, आई विल कम एंड सबसे अच्छा मैं बोलूंगा। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग देयर, वो 3 मिनट जो आपको मिल रहे हैं, विजुअलाइज अपने
पॉइंट्स पे ध्यान रखो कि क्या क्या मैंने बोलना है, एंड विजुअलाइज आई एम गोइंग देयर व्हेन आई स्टेप। जैसे ही मेरा ये स्पीच इतनी अच्छी लेक्चर मेरी होगी, इवन जीटीओ विल लुक एट मी, ही में से गुड, बाकी ग्रुप मेरी तरफ ऐसे देखेगा। उसको विजुअलाइज करो। ये मत विजुअलाइज करो कि अगर मैं नहीं बोल पाया, मैं भूल गया, मैं ये हो गया, तो वो नेगेटिव यूज हो गई उसकी। पॉजिटिवली यूज करो, करके देखो आप, एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस। विजुअलाइजेशन इज वेरी पॉजिटिव थिंग, वेरी हेल्पफुल, प्रोवाइडेड यू यूज इट प्रॉपरली। और आपको शक्ति दी हुई है भगवान ने, तो उसको यूज करना शुरू करो। तो जो सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हैं, अपने इमेजिनेशन को यूज करके आप मैथ्स में एक अलजेब्रा में आपको सम मिलता है, तो यू एज्यूम ना, लेट दिस बी एक्स, लेट दैट बी वाई, दैट बी जेड। तो आप क्या कर रहे हो, अपने इमेजिनेशन को आप एक इमेजिन करके आपने एक वैल्यू किसी चीज को दे दी है, उसकी मदद से फिर आप सब नॉन फॉर्मूला जो आपके यहाँ पर ब्रेन में है उसको यूज करके एंड देन यू गिव योर आंसर। तो वही चीज आपने यहाँ पर करनी है, यूज योर विजुअलाइजेशन। लेट, उसके अलावा योर खाना भी, इंस्टेड ऑफ हैविंग जंक, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो फालतू वाली बात है। नहीं, दे विल हेल्प। फाइब्रस फूड, प्रोटीन्स, नो इट डजंट मीन कि आप जाके जिम में जो कुछ बेचते हैं वो लेके खा जाओ, नहीं। तो देयर इज सर्टेन, तो इस टाइप का खाना जो आपके लिए, इसको सिंपली मैं बोलूंगा तो हेल्थी फूड है, उसको आप कंज्यूम करोगे तो यू, तो वो आपको अंदर से डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो नहीं डिस्टर्ब करेगा तो आपकी एनर्जी जो है जनरेट होगी और वो प्रॉपरली फोकस्ड होकर आप उस पर काम कर सकते हैं। एक जो एकदम इमीडिएटली काम करता है आपके लिए, डीप ब्रेथ, लंबी सांस। मैंने बताया ना, अमिताभ बच्चन बोलता है कि मैं लंबी सांस लेता हूँ, और वो जो सांस लेते हैं हम, वो टेक इट फ्रॉम योर ये तो ऊपर से नहीं लेनी, यहाँ यहाँ नीचे डायफ्राम होता है, पेट होता है, जो पेट, लंबा सांस होता है। अब यू कैन फील इट इन योर स्टमक कि हाँ मेरा पेट भी फूल रहा है, देन रिलीज इट। ऐसे 2-3 बार करो आप। उसमें क्या होता है, अगर आपके जैसे लेक्चरेट के पहले आपने किया, इंटरव्यू ऑफिसर के रूम अंदर घुसने के पहले थोड़ा वो करो, तो इससे यू विल फाइंड दैट योर नर्व्स विल गेट काम्ड, इट विल हेल्प यू। व्हाई? इट विल टेक योर, ये जो मन, अशांत मन इधर उधर आपको जो तंग कर रहा है ना, उसका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे कैसे बताया था सांस लेने के लिए, वैसे सांस लेने में, तो योर फोकस इज शिफ्टेड देयर। साथ साथ गिनती भी कर लो अगर आपने करनी है, एंड इन दैट योर फोकस विल शिफ्ट फ्रॉम फीलिंग नर्वस टू फीलिंग नॉट नर्वस, सांस लेने में। और वो करोगे, बहुत कम हो जाएगी, भाग जाएगी या कम हो जाएगी। There are certain things which you have to avoid and avoid them at all costs. You know, ये कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, रेड बुल, अरे यार पीते ही बंदे, खाते बंदे को पता नहीं कहाँ से शक्ति आती है, सुपरमैन बन जाता है, वो एड्स में होता है। Maybe when you drink it, because certain substance has gone inside you, it may give you some kind of feeling, but then it will be momentary. ऐसे भी हम साथ नहीं लेके जा सकते कि जब लेक्चर की तैयारी करने खोल के ठक, या इंटरव्यू के सर जस्ट 2 मिनट्स, वो आप नहीं कर सकते हो। तो और फिर जब उनकी आदत पड़ जाती है ना, फिर वैसे ही दे आर नॉट गुड। और इनसे क्या होता है कि उस टाइम पे तो थोड़ी देर के लिए आपको वो शांति दे देगा, फिर उसके बाद आप यू फील मोर टेंस, विच इज नॉट गुड फॉर यू। एक और चीज है जो कि इट इज लाइक ए बीमारी, बहुत लोगों को होती है, थोड़ी सी मुझे भी है, ट्राइंग टू बी परफेक्ट। ये ट्राइंग टू बी परफेक्ट, आप मुझे बताओ दुनिया में आज तक कौन परफेक्ट हुआ है? अगर आप परफेक्ट होते तो भगवान नहीं होगे आप। यू कैनॉट बिकम परफेक्ट, यू कैनॉट मेक ए परफेक्ट प्रेजेंटेशन, यू कैनॉट डिलीवर ए परफेक्ट लेक्चर। तो परफेक्ट, और व्हाट इज परफेक्ट? आपके लिए जो परफेक्ट है मेरे लिए शायद वो ना परफेक्ट हो। तो ये परफेक्ट के चक्कर में जितना आप अच्छा कर सकते हैं कर लो, टाइम है तो कर लो, बट परफेक्ट नहीं आप बन सकते। इंप्रूवमेंट ले आओ, बट आप परफेक्ट तो कभी भी नहीं बन पाओगे। और वो पर कि नहीं अभी तो मैं ये और तैयारी करनी है, अभी मैं ठीक नहीं। यार देखो, जितना चाहिए उतना है तो दैट इज गुड इनफ। मैंने देखा जनता ने पोथियां खरीद रखी है, इतनी किताबें खरीद रखी हैं, सीडीज, नेट पे जो मिल रहा है ले लो। वो फिर अल्टीमेटली तो वायरस ही बनता है, बिकॉज दे ट्राई टू बी परफेक्ट। एंड परफेक्ट जब आप सोचोगे तो धीरे धीरे परफेक्शन आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। वेदर इट इज टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, आप पहले क्या तैयारी करके चले गए? कुछ नहीं करके जा सकते हो। यस, यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, जिससे आपकी थोड़ी अपने नर्वसनेस को आप कंट्रोल में ला सके। और गलतियों को आप रेजिस्ट मत करो। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ,
रोज एक गलती करके आओ कि आज सर मैंने ये गलती की, लेकिन अगर दोबारा वही गलती की तो लगाऊंगा। सो मेक ए मिस्टेक, लर्न फ्रॉम इट, डोंट रिपीट इट, उससे सीखो। दैट इज हाउ यू विल गेन एक्सपीरियंस। तो गलतियों से डरो मत, गलतियों से सीख लो, गलती होती है होने दो और उसे सीख ले लो, और आगे वो ना हो पाए, अपना परफॉर्मेंस आगे इम्प्रूव हो जाए, उस पर आप काम करो। एंड यू सी हाउ योर नर्वसनेस गोज। ओके, नाउ लेट्स टॉक। जब वो इवेंट हो रहा है जिसके लिए आपके मन में नर्वसनेस थी, अब ऐसी चीज है जिस चीज के ऊपर हमने, जिसके बारे में हमारे मन में वो था कि कहीं पहली बात तो जब आपने पहले तैयारी की हुई है तो अभी वो उस टाइप की चीज होगी नहीं। लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उस टाइम पे आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। जिस चीज को आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसके ऊपर, आपके ग्रुप के अंदर एक लड़का है जो बैठ के आपको स्माइल मार रहा है, किसी की आपने कोई गलती की तो उसको स्माइल आ रही है, हंसी नहीं रुक रही उसकी, फोकस ऑन दैट, गॉन। देयर आर सो मेनी अदर पीपल, डोंट लुक एट देम। आपने 8 पॉइंट आपके मन में थे कि यार मैं 8 या 7 या 6 पॉइंट इसके ऊपर मैंने लेक्चर में बोल, ये मेरे पॉइंट है, ये बोलना है। एक पॉइंट आपको भूल गया, तो छोड़ दो उसको। नहीं, वो क्या कर रहा हूँ, कौन सा पॉइंट था यार, कौन सा पॉइंट था, ये वो बॉडी हिल रही है, डोंट डू दैट, लीव इट। किसी को पता थोड़ी कि आपने वो पॉइंट बोलना था। स्टार्ट टेलिंग द नेक्स्ट पॉइंट। हो सकता है दोबारा वो आपको याद आ जाए, फिर बोल देना। तो ये फोकस ऑन दोज थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल। समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरे से क्या चीज पूछेंगे, मेरे से क्या वो ये करेगा, यू डोंट नो दैट, व्हाई फोकस ऑन दैट, क्या पूछेंगे। मैं बता दूं, एसएसबी में आपसे आपके जनरल अवेयरनेस जो कि बाहर की चीज है, उसके अलावा उन्होंने आपके बारे में ही बातचीत करनी है। तो क्यों, वेयर इज अ नीड टू फील नर्वस अबाउट योरसेल्फ, अनलेस उसमें कुछ बहुत ज्यादा आपकी गलतियां थी या कुछ ऐसे हैं, तो उसके अंदर भी आप उनको छुपा तो सकोगे नहीं, वो छुपाना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो फोकस ऑन योर गुड थिंग्स, बी प्रेजेंट। नो, यू कांट कंट्रोल योर पास्ट। आपने जीडी में आप पार्टिसिपेट ठीक से नहीं कर पाए, अब ये आपका 6 पॉइंट थे, आप 4 ही बोल पाए वहां पे, ये पॉइंट मेरा रह गया, वो पॉइंट मेरा रह गया। अभी जीपी की आपकी ब्रीफिंग हो रही है और आपका दिमाग कहाँ पर है? प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है। यू आर नॉट लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट। आप पीछे चले गए, अभी जीटीओ ने 2 पॉइंट बोलते हैं जो आपने मिस कर दिए, इट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। सो बी इन द प्रेजेंट, व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट, फोकस ऑन द प्रेजेंट। अभी आप अपने पास्ट को भूल जाओ, बी माइंडफुल ऑफ अभी क्या हो रहा है, नहीं तो फिर नर्वसनेस तो आनी आनी है। जो आप नहीं कर पाए अभी उसके बारे में मत सोचो, अभी आगे क्या करना है उसके बारे में यू शुड बी। साथ ही अभी जो हो रहा है उस टाइम पे आप फ्यूचर की मत सोचने लग जाना, अभी इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। अभी आप प्रेजेंट में रहो, अभी जो हो रहा है उस पर फोकस करो और उसको करो। ये आगे पीछे की सोच सोच के हम अपना काम बढ़ाते हैं और फिर माइंड हमारा रेस्टलेस हो जाता है, एंड फिर वो नर्वसनेस हमको फील होती है, और होगी, होनी चाहिए, फिर तो होगी होगी। मतलब हम वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द मिस्टेक्स व्हिच वी हैव नॉट मेड, उनके बारे में हम सोचने लग जाते हैं, अगर ये गलती होगी, वो गलती होगी, तो देन अगेन। तो इन चीजों पे आप मत करो उस टाइम पे। आपका प्रेजेंट क्या है, आपने लेक्चर के लिए खड़े हो और वहां बोल के आपने डिस्कशन के लिए हो, आपने अभी डिस्कशन करनी है, जो हो गया वो हो गया। आगे अगर नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, तो वो आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो, वो भी हुआ नहीं, उसके बारे में क्यों सोचना है आपने। सो बी प्रेजेंट, बी माइंडफुल अबाउट योर प्रेजेंट एंड नॉट अबाउट इधर पास्ट और नॉट अबाउट योर फ्यूचर, इमीडिएट और फार ऑफ वाला। आपका फोकस होना चाहिए जो अभी चल रहा है उसके ऊपर, उसके अलावा आपने कोई चीज नहीं सोचनी। यू शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव इन द सेंस, ओके, मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, तो हमारी सोच है। तो यस, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, रादर देन थिंकिंग आई कांट, थिंक आई कैन। बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ आई कांट, तो फिर वो आई कांट में ही बदल जाएगा, फिर तो वो आप कुछ करोगे भी नहीं। अगर आपने आई कांट मान लिया तो आई कैन पे फोकस करो, आई कैन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना, वो गलती करोगे, सीख लेना उससे। बीच में आपसे कुछ बोलते बोलते अटक गए, यू हैव ए चॉइस, चेंज ओवर टू हिंदी। जो चीज जहां अटक गए थे उसको बोलो, उसके बाद वापस आ जाओ इंग्लिश में। इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैज आस्क्ड यू समथिंग, इफ यू आर अनेबल टू आंसर इट, से सॉरी। बट ये नहीं कि सारा इंटरव्यू आपका सॉरी में ही निकल जाए, तो दैट मच इज ओके। जो हो रहा है, पूरे मारे गए नहीं, दिस इज फन यार,
व्हाट एन अपॉर्चुनिटी आई एम गेटिंग एट द एसएसबी। एसएसबी तो बड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है मेरे को। रात दिन मारे गए यार, अभी एसएसबी, अच्छा इलाहाबाद, ओ यार मारे गए, अच्छा बैंगलोर मारे गए, ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी यार, आई एम गोइंग टू द एसएसबी। वहाँ इतनी चीजें होंगी, अच्छा टीएटी होगी, मतलब पूरे साइंटिस्ट होंगे, ग्रेट यार, आई कैन शो माई सेल्फ। तो अब जब आप ऐसे सोचोगे तो आपकी सोच आपको नर्वस नहीं होने देगी। और अगर ये सोचोगे यार मारे गए यार, वहां आ गए यार, अरे अब ये होगा यार, अब इसमें अच्छा 12 पिक्चर दिखेंगी, 12 पिक्चरों पे लिखना है, तो यू कैन थिंक 12 पिक्चर्स, व्हाट अपॉर्चुनिटी, 12 पिक्चरों में तो मैं अपने बारे में सब कुछ लिखा के दिखा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अगर आप सोचोगे तो देन दैट मीन्स यू आर स्टेइंग पॉजिटिव। एंड मन में आप ये रखो कि आई एम काम, डोंट थिंक आई एम नर्वस। और एक हमारी आजकल आदत है कि अपना लेबल लगा लेते हैं, आई एम वेरी एंग्जाइटी प्रोन, किसी ने बोल दिया या आपने खुद ही एक अच्छा सा वर्ड लगा लिया, सर आई एम एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब नहीं पता, थोड़े से शाई होंगे तो अपना आपको इंट्रोवर्ट बोलना चाहते हैं, वो फिर आप वैसे ही हो जाओगे। इसके बजाय आप बोलोगे आई एम एक्साइटेड, अभी लेक्चर है ना 3 मिनट है, अभी जाके बोलूंगा, आई एम फुली एक्साइटेड अबाउट इट। यू सी योर एक्साइटमेंट विल स्टार्ट कमिंग इन टू यू। वो जो आप बाहर से करोगे ना, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। देखना आप कभी कर, मेंटेन कंट्रोल ओवर योर ब्रीदिंग। आप रियलाइज करोगे जब आप नर्वस होने लग जाते हो तो आपके सांस छोटी 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 जल्दी जल्दी हम सांस लेना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे लग रहा है तो रिवर्ट टू दैट रिदमिक काम ब्रीदिंग, वो करोगे तो एंग्जाइटी हटेगी आपकी। अपने आप को इमोशनली मत इन्वॉल्व कर दो उसके अंदर, डिटैच योरसेल्फ इमोशनली। ये अगर आपने एक लेक्चर देना है या आपने कुछ पार्टिसिपेशन करनी है, तो अब आप रिजल्ट के बारे में मत सोचो, उसके बारे में नहीं हुआ हो गया उसके बारे में मत सोचो एट दिस टाइम। बीइंग प्रेजेंट मीन्स अभी क्या चल रहा है उस पर फोकस रखो। जब उस पर आपका फोकस होगा तो वो कहीं मिस्टेक ना हो जाए या हवा में चले गया, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, तो वो चीजें नहीं होंगी फिर। एंड देन यू विल फील लेस नर्वस, नो यू विल नॉट इवन फील नर्वस देन। ओके, एक चीज और आप देखो करके, ट्राई एक्टिंग, नॉट अ पिक्चर वाली एक्टिंग, ट्राई टू एक्ट as if you are confident. How a confident person will be behaving in this situation. तो ये जो हम बोलते हैं ना फेक इट, इफ यू कांट मेक इट देन फेक इट, तो यस, ये जो करना है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये है जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी जो समय है उसके अंदर आप ये चीज शो करो। और यस, कभी ये सिचुएशन आ जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत आप कर लो, लेकिन ये अगर आप सोचो कि मैं इंटरव्यू के दौरान आई विल फेक इट, तो देन यू आर गॉन। और इन एनी ऑफ द टेस्ट इफ यू थिंक यू कैन फेक इट, देन यू आर गॉन। बट यस, एक ही अपने मन के लिए है आपका कि एज यू स्टार्ट बिहेविंग एज इफ यू आर ए कॉन्फिडेंट पर्सन, इट विल गेट ट्रांसमिटेड इनसाइड यू। आप अंदर से भी वैसा ही आप फील करने लग जाओगे। ट्राई काउंटिंग टू 10, ट्राई काउंटिंग टू 5 इन द रिवर्स ऑर्डर। जब आपको लगता है कि मैं थोड़ा अभी नर्वस हो रहा हूँ, उल्टी गिनती शुरू कर लो, ज्यादा लंबी नहीं, उतना टाइम नहीं होगा आपके पास उस टाइम पे। तो उसमें हो क्या हो जाएगा इससे, इससे जो आपका फोकस है वो नर्वस होने से हटके गिनती करने पे आ जाएगा। एंड देन यू विल फाइंड दैट यू, 1 मिनट के लिए जो आपको वो प्रॉब्लम हुई थी वहां से शिफ्ट होके यू आर अगेन बैक टू नॉट बीइंग नर्वस। सो नर्व्स को काबू से बाहर अगर आप जाते देखते हो तो फटाफट ये चीज कर दो, ऐसे मौके पे ये चीज आपके काम आएगी। तो थोड़ा सा अपने आपको कामनेस लेके आओ, और जैसे आपको लगता है कि ये हो गया, then immediately get on to what you were doing. Try moving your body. Move your body. ज्यादा स्टिल होने से भी थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, so try moving your body. Now it doesn't mean कि लेक्चर में आप खड़े हो और बॉडी ऐसे ऐसे हिल रही है, एक पैर से दूसरे पाँव पे, दिस इज नाउ दैट व्हाट यू कैन डू। ओके, ये जो बॉडी वाली मैं बात कर रहा हूँ वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी जो फिजियोलॉजी है, मतलब जो आपके बॉडी के जो मूवमेंट है, जो आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी है, फिजियोलॉजी है, और जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है वो आपकी साइकोलॉजी है। तो ये फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इफ यू आर सैड, योर बॉडी विल शो दैट यू आर सैड, एंड इफ यू स्माइल, दैट्स व्हाई जैसे मॉर्निंग मैसेज शुरू हो जाते हैं स्माइल स्माइल स्माइल, तो इफ यू स्माइल, आप करके देख लेना, कीप ए स्माइल ऑन योर फेस
and try to feel sad, you will not be able to do it. Try to keep a smile on your face and think of something sad, बहुत मुश्किल है कर पाना. तो ये इतना पावरफुल चीज है ये, जो जो रिलेशनशिप है हमारे बॉडी लैंग्वेज और हमारे मतलब हमारे बॉडी की एक्टिविटी और हमारे जो साइकोलॉजी के अंदर जो हमारे मन में चल रहा है, ये बहुत इंटरलिंक हो जाते हैं. वहां पर ये चीज जो है, जब आपकी बॉडी आप, और ये रिवर्स में भी चलती है, आप कॉन्फिडेंट हो गए, आपकी बॉडी आपकी चाल बदल जाती है. आपको देख के बंदा बोलेगा बड़ा कॉन्फिडेंट है. आप उदास हो, आपका दोस्त बोलते हैं क्या बात है यार, आज बड़ा दुखी नजर आ रहा है. तो कैसे पता लग रहा है कि आप दुखी हो? यार आज तो है, तो बहुत खुश हो, तो दिखता है आज तो बहुत खुश हो आप. तो अगर आप अपनी बॉडी में वो खुशी लेके आओगे, तो आपके अंदर भी वो चीज महसूस होने लग जाएगी. तो यहाँ पर ये चीज आपके काम आ सकती है और आएगी अगर आप इसको कोशिश करोगे तो. एक और चीज है कि आप अपना जो देखने का दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को थोड़ा बदल के देखो. ट्राई टू चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट. जब जिस चीज को आपको लग रहा है कि वो नर्वसनेस है, सोचो क्या नर्वस है. इट कैन बी ऑल्सो एक्साइटमेंट. मे बी आई एम फीलिंग एक्साइटेड. तो इज इट नर्वसनेस और एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट इज गुड. तो उसको उस दिशा में फिर आप मोड़ सकते हो. तो ये जो चीज है कि अपना जब आप पर्सपेक्टिव बदलोगे, तो उसका रिजल्ट भी आप पाओगे. अभी अभी लीजिए आप एसएसबी में आ रहे हो, और अगर आपके मन में है कि यार मारे गए यार, वो तो फला फला एसएसबी मिल गई, वो यार ये हो गया, वो यार ये बोर्ड मिल गया, अब तो मारे गए. अरे नहीं भाई, टेक इट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी. क्या मौका मिला है मुझे, अब मैं वहां जाके सब कुछ दिखा सकता हूँ. वहां साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, जीटी टास्क होंगे, इंटरव्यू होगा, अरे मारे गए इतना कुछ होगा. गुड यार, इतनी चीजें हैं, तो मैं तो फिर मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला सब कुछ दिखाने के लिए. तो आप उस तरीके से सोचोगे, आपका परफॉर्मेंस अलग होगा, आप नहीं नर्वस फील करोगे. टीएटी 12 पिक्चर है, अरे 12 पिक्चर है, गए काम से. 12 पिक्चर्स, गुड यार, मुझे 12 अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को अपनी क्वालिटी शो करने के लिए. तो वैसे सोचोगे तो आप नर्वसनेस आपकी कम हो रहेगी, आप होगे ही नहीं. ग्रुप टास्क, मारे गए यार, ये कैसा टास्क दे दिया, वो ये कैसा स्ट्रक्चर है. तो सोचो यार, जीटीओ आपको बोलता है कि स्ट्रक्चर जो आपकी मदद के लिए है, दे आर देयर टू हेल्प यू. यार ये चीज है कि इसकी ये शेप है तो मेरी हेल्प के लिए दी गई है, मुझे हमारे ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है. दिस इज गोइंग टू हेल्प अस. तो थिंक, इफ यू थिंक लाइक दैट, देन योर पर्सपेक्टिव विल चेंज. आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा उसी चीज के बारे में, और फिर वो आपका एक्साइटमेंट बनेगा नर्वसनेस बनने की बजाय. तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे. अगले सेशन में ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ उठानी चाहते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना चाहेंगे. उसमें मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा. उन स्टेप्स में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपने खुद से पूछने हैं, खुद ही आपने उनको आंसर करना है, और फिर खुद ही उसके बारे में आपने सोचना है, और फिर उसके ऊपर एक्शन करना है. तो वो जब आप करना शुरू करोगे, तो यू विल फाइंड इट विल हेल्प यू. मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेट, लेस नर्वस देन यू विल रिमेन. सो दिस, ये जो थोड़ा सा जिसमें आपको पेन उठाना, कष्ट उठाना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. और मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि अभी अनअकैडमी पे 2 बहुत अच्छे कोर्स आ रहे हैं 3 मंथ ड्यूरेशन के. वो अभी आपको, यू विल बी एबल टू सी दिस एंड make use of this. If you have not subscribed yet to these courses, Auto Plus, please do that. It will be a big, a very, very beneficial thing for you. And for subscribing, you can use my code, Colonel Rehal, COLREL. You can see it on the screen. And this will entitle you to get 10% discount on whatever is the fees. Thank you very much. And I am waiting eagerly to be with you in the next video.